نیلے آسمان کے اللہ کریم ان کے کان کھول دے اور یہ دروازے ان لوگوں کے لیے کھولنا جن کا بس نہیں چلتا. یہ دروازے ان غریبوں کے لیے کھولنا جو یہاں تک پہنچ نہیں سکتے. یہ دروازے ان کے لیے کھولنا جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے سامنے مار کھاتے ہیں. یہ دروازے ان کے لیے کھولنا جو اسمبلی کے سامنے وہاں کھا کر اپنے سر توڑ دیتے ہیں, ان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں, ان کے بازو ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر ہسپتال جاتے ہیں اور پھر ہسپتال سے خیبر پختونخوا کی پولیس اسے اٹھا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دیتے ہیں. تو اگر یہ جگہ اللہ کریم تو نے ہماری آواز یہاں تک پہنچائی تو صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے سامنے میرے بیٹوں کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ جو ہیں اور ٹوٹے ہوئے سر جو ہیں اور ٹوٹی ہوئی ٹانگیں جو ہیں ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے گا. اور اس زمینوں کے مالک کو میں یہ کہتا ہوں کہ رب کریم اپنا ایک کرشمہ یہاں دکھا دے تاکہ یہ جگہ جو ہے, یہ دیواریں, یہ ہماری غریب کی آواز بھی سن سکے. کیا کریں گے, کیا ہماری جو ہمارے بیٹے اور ہمارے بھائی یہاں پر جمع ہوئے ہیں, کیا کچھ کسی کے کان میں کوئی آواز ہماری پہنچ سکے گی یا ہم ویسی ہوا میں لگے ہیں؟ ہم کو معلوم ہے شاہوں کی حقیقت, لیکن زنجیر کو ہلایا جانا بھی ضروری ہے. السلام علیکم میڈم سے لیں. پہلا نمبر آپ کا ہے. میرے سر میں کھا دی میڈم سے لیں. لائیو جا رہے ہیں, پہلا نمبر آپ کا ہے. بالکل لائیو. جی کیا کہتی ہیں رول آف لا کے بارے میں؟ سر آج بہت زبردست اور بہترین جو ہے رول آف لا کے اوپر کنونشن ہوا ہے اور کے پی سے بہت بڑی تعداد میں لائرز یہاں پر آئے ہیں اور خان صاحب کی کال پہ انشاءاللہ تعالی ہم کل ان کو راولپنڈی میں جوائن کریں گے. اور لائرز ہمیشہ رول آف لا کے لیے خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہوئے. سپریم کورٹ کے سامنے حضرات صاحب احتجاج ہے اور رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. جی سپریم کورٹ کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ ہر حال میں کیا جائے. ملک کے وزیر اعظم کے بیان نہیں درج ہو رہی, وہ ہمارے صحافی ساتھی تھے, ان کو انصاف نہیں مل رہا. اعظم سواتی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. آئین تو بنا ہی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ہے, اب وہی تحفظ باقی نہ رہے تو پھر آئین کیسے کارآمد ٹھہرے گا. سو لائرز مل کے سینسیٹائز کر رہے ہیں اس ایشو کو, تو یہی وہ کام ہے جو ہم آج کھڑے یہاں پہ کر رہے ہیں. آواز نے تو ہمیشہ اپنا راستہ بنایا ہے اور یہی راہ گزر ہے, یہیں پہ آواز بلند کر کے سنانی ہے. ہم کو معلوم ہے شاہوں کی حقیقت, لیکن زنجیر کو ہلایا جانا بھی ضروری ہے. زنجیر کو ہلایا جانا بھی ضروری ہے. سو ہلا رہے ہیں, جگا رہے ہیں, سنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں. سو یہی اسٹرگل ہے. میں سمجھتا ہوں تاریخ رقم ہو رہی ہے اور شعور بیدار ہو رہا ہے. عوام نے سمجھ لیا ہے کہ پاکستان از انکلوسیو آف آل. ہمیں مل کے پاکستان کو بنانا ہے, اداروں کے تناؤ کو ختم کرنا ہے, آئین کے تحت لانا ہے. ہم ہی نے تو کرنا ہے, ہماری ہی تو ذمہ داری ہے. یہ میری بیٹی کیا کہتی ہے رول آف لا کے بارے میں؟ سر جو سرگوشیاں تھی اب وہ چیخوں میں بدل گئی ہے. جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ سمجھ لے ملک میں رول آف لا آ رہا ہے. پھر یہ وکیل صاحب یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم وکیل صاحب. وعلیکم السلام. کیا ہو رہا ہے آپ کے پیچھے, کون سی جگہ ہے, کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ دیکھیے میرے پیچھے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. یہ وہ ادارہ ہے جو پاکستان کے تمام عوام کی امیدوں کا ایک آخری راستہ ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جی رول آف لا کی بات کر رہے ہیں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا نہیں ہوگا نا تو پاکستان کا کوئی استحکام ممکن نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ دو قوانین رکھنے سے ہم اس قوم کو سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ چلا سکتے ہیں تو یہ ناممکن بات ہے. یہ ناممکن ہے. کیا سمجھتے ہیں ہمارے اعظم ساتھی صاحب کو انصاف مل جائے گا؟ دیکھیں بات یہ کہ بالکل انشاءاللہ ملے گا. ہم تمام دیکھیں ایک تحریک بن گئی, آپ دیکھ رہے ہیں اعظم سواتی کا واقعہ جب سے ہوا ہے. ہم اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ آئے تھے, آج بھی آئے ہیں. پورا پاکستان مشتعل ہے اور ایک بات ہم سوچ رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہمارے ساتھ ہو سکتا. بس کوشش کرنے آئے ہیں جی کہ اللہ پاک جو ہے پر رحم کرے. اور سپریم کورٹ کو بتا رہے ہیں کہ ہم بہت پیسفل لوگ ہیں, بہت پیار سے, بہت محبت سے ہمارے نگران کی FIR نہیں کاٹی جا رہی اور جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں ویسی نہیں کاٹی جا رہی ہے. جبکہ لا یہ ہے کہ جب ایک انفارمیشن آئے تو من آپ اس انفارمیشن کو نوٹ ڈاؤن کرو, اس کے اکارڈنگلی انویسٹیگیٹ کرو. ہم رول آف لا کی کے لیے نکلے اور خان صاحب کے ساتھ نکلے. میں خود ملاکنڈ سے بلانگ کرتا ہوں, ملاکنڈ ریجن سے, آئی ایل ایف آرگنائزر ہوں ملاکنڈ سے. میرے ساتھ پورا اپنا وہ ملاکنڈ کے کافی وکلا آئے ہوئے ہیں اور ہم نے ادھر تیار کیا ہوا ہے کہ ہم کل بھی ادھر خان صاحب کے ساتھ ہوں گے, پرسوں بھی ہوں گے, اور جب تک خان صاحب کہے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں.
किस लिए खड़े हैं? कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। कानून की बालादस्ती क्या है? पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती से ही इंसाफ, तरक्की और खुशहाली आएगी। जब तक ये नहीं आता पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान के लोग अवाम खुश नहीं हो सकते। तो यही हम पाकिस्तान के वारिसान हैं और यही खान साहब के साथ हम खड़े रहेंगे। क्या कहते हैं, जो मुल्क में जितने भी लोग हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों पर बैठे हैं, जिसका काम यहाँ पे काम करना है वो झाड़ू मार रहे हैं गाड़ियों पे। यहाँ पे एक थे हमारे जस्टिस साहब थे या पता नहीं क्या थे, वो यहाँ गाड़ियों को कह रहे थे कि उधर गाड़ियाँ लगाओ। तो क्या उसको अपनी सीट पर बैठना चाहिए या ट्रैफिक पुलिस का सिपाही बनना चाहिए? बेशक उनको अपनी सीट पे बैठना चाहिए और अपने इख्तियारात जो उसको दिए हुए आईने पाकिस्तान के अंदर वही इस्तेमाल करने चाहिए और पाकिस्तान की भला और भलाई के लिए वो करने चाहिए, न कि इधर गाड़ियों को वो आगे पीछे करने के लिए बाहर निकले। वही आईन ने जो उनको दिया हुआ है उस पर उसको अमल करना होना चाहिए। संभाले जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बार कसूर का प्रेसिडेंट हूँ और कसूर ILF का ऑर्गेनाइजर भी। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि जब तक अदारे इंडिपेंडेंट और ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तब तक यहाँ आम आदमी तक इंसाफ नहीं पहुंचेगा। नवीर बलोच एडवोकेट, मैं और डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर हूँ ILF कसाईवाल से, और अपने लीडर की कॉल पे हम आज ही अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह कल तारीख रकम होने जा रही है और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा मेरे लीडर इमरान खान की कॉल पे जम्मे गफीर इस्लामाबाद पहुँच रहा है। हम अभी से आ गए और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान वकीलों ने बनाया था और वकला ही इसको बचाएंगे। जैसा कि आप कह रहे थे ये दीवारें हैं और इंशाल्लाह इन दीवारों को हमारी बात सुननी पड़ेगी, अदरवाइज इनके पास और ऑप्शन कोई नहीं है। हम चीफ की खातिर, हम चीफ के साथी, जिंदा है मुगला, 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 मेरे देश के मुगला, एक आइन की खातिर, एक मुल्क की खातिर, इंसाफ की खातिर, इंसाफ की खातिर, हम चीफ के साथी, अल्लाह के नाम से, नबी के सदके, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बस ये सिर्फ बकवास के लिए है। काला कोट काली टाई सामने इन दीवारों के क्या कहते हैं? जी प्रोटेस्ट हो रहा है फॉर द रूल ऑफ लॉ, कि कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और मुल्क को एक डायरेक्शन देनी चाहिए और ओनली थ्रू काला कोट ही जो डायरेक्शन प्रॉपर मिलेगी मुल्क तरक्की करेगा, हमारी इकॉनमी जो है वो स्ट्रांग होगी इंशाल्लाह। देखिए ना, इसी चीज़ की तो जंग है। वाई वी आर हेयर टू प्रोटेस्ट अवर राइट्स, ताकि रूल ऑफ लॉ जो बुरा करे कल्प्रेट शुड बी बिहाइंड द बार और जो इंसाफ हो वो प्रिवेल करे। ये जो रात 12 बजे अदालतें खुली हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ। हम रूल ऑफ लॉ के कायल हैं और चाहते हैं कि हमारा कंट्री सही डायरेक्शन में मूव करे। तो इसी तरह कर सकता है जब रूल ऑफ लॉ होगा। मेरा नाम अरशद बड़ाइच है, वेस्ट पंजाब ILF का मैं प्रेसिडेंट हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, एक्स मेंबर पंजाब बार काउंसिल हूँ। चलो आप देखेंगे कि ये जो मूवमेंट चली है ये नहीं रुकेगी, ये रूल ऑफ लॉ के लिए मूवमेंट चली है, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी आने वाली नस्लें भी इसका समर लेंगी और ये कामयाब होगी। और जिस तरह जिस डगर पे ये चल रही है हमारी अदलिया और हमारे अदारे, ये इनको रोकना पड़ेगा। किसी भी स्टेज पे किसी ने रोकना है। ये हमेशा रूल ऑफ लॉ का पाकिस्तान में बोखला नहीं इसका एजेंडा उठाया है और इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह उठा के रखेंगे और उस वक्त तक हम ये जंग जारी रखेंगे जब तक रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी नहीं होती। देखें, बोखला बरादरी को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए बाहर निकले हैं। पहले भी मूवमेंट, पहले जो इफ्तिखार चौधरी वाली मूवमेंट थी उसमें भी हम रूल ऑफ लॉ के लिए निकले थे, आज भी हम रूल ऑफ लॉ के लिए निकले हैं। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के एक साबका वज़ीर आज़म जो कि एक पॉपुलर लीडर हैं उन पे कातलाना हमला हुआ है और उसकी FIR दर्ज ना हो। इससे हमारे अदारे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। ये इस पर कोर्ट्स को, सुपीरियर कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए और फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करवाना चाहिए और FIR लाद करवानी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला
माहौल ऐसा होगा, ये करबला भी होगा और यजीद का सर हम तन से जुदा भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस यजीद का सर तन से जुदा करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाहौर से आया हूँ, असलम रिजवी मेरा नाम है जी। लाहौर से जनाब शादाब जाफरी साहब के साथ। और ये मियाँ साहब बात ये है कि इस वक्त जो भारी जिम्मेदारी आयद होती है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, जो रियासत और रियासी इदारों के दरमियान अवाम का जो खला पैदा हो गया है, वो उसको पाटने के लिए जो खरीद वसी हो रही है, अब खैर अल्लाह के हुक्म से स्टेबिलिटी आएगी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन है। और जनाब चीफ जस्टिस उमर रजा बिंदियाल साहब, आप सो मोटो लेकर ये जो जितनी हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, इनका नोटिस लेकर रियासत और रियासत के अवाम का जो जो फासला पैदा हो रहा है, दूरी हो रही है, इंसाफ फराहम करके इसका रुख मोड़ा जा सकता है। वरना माशरे में रेस्टलेसनेस होगी, बेचैनी होगी और क्योस डिसऑर्डर होगा, और जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है और हमारी सलामती के खिलाफ है। आज आप देख रहे हैं जनाब चीफ जस्टिस, जो फेडरल रिपब्लिक पार्टी है, जो चारों सूबों की जंजीर है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आज हमारे लीडर इमरान खान वफाक की अलामत हैं, वफाक पाकिस्तान की सलामती की जमानत है, उनका आईनी और पॉलिटिकल रास्ता रोकने की साजिशें हो रही हैं। लिहाजा जनाब चीफ जस्टिस, इस अदालत पे, आप पे ये भारी जिम्मेदारी है, हमें इंसाफ फराहम करके जो खलीज है इसका रुख मोड़ा जा सकता है। रजब अली बलोच, एडवोकेट, डिप्टी ऑर्गेनाइजर साहिवाल से हैं। जनाब, हम आज रूल ऑफ लॉ के लिए कसीर तादाद में साहिवाल से निकले हैं और यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। बहुत दुख की बात है कि यहाँ जब इतवार को अदालतें खुल गई, रात को अदालतें खुल गई और एक गरीब के लिए इंसाफ नहीं है, उसी के लिए आज हम आए हैं कि गरीब को भी भाई इंसाफ दो। जब बड़े लोगों को इंसाफ इतवार वाले दिन देते हो, रात को अदालतें खोल लेते हो, तो गरीब के लिए क्यों नहीं ऐसा मुमकिन? कहीं FIR नहीं हो रही, एक साबका वजीर आजम की उस पर हमला हुआ तो FIR ना हुई, और कहीं जो है किसी का कुत्ता मर गया तो FIR दे देते हैं। ये रूल ऑफ लॉ है क्या? ये जस्टिस जो बनाते हो, इसके लिए भी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। आज जो हम सड़कों पे निकले हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए निकले हैं, और हम गुजारिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पे खड़े होकर के रूल ऑफ लॉ के लिए हम कायदे आज़म से लेकर, क्योंकि वो भी एक वकील था और हम भी वकील हैं, और आखिरी दम तक, जब तक हम जिंदा हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ते रहेंगे, पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए लड़ते रहेंगे। कन्वेंशन शुरू है, अब अल्लाह के करम से अस्सलाम वालेकुम। आमिर खान खटक जी खानेवाल आयम और इंसाफ से प्ररावती रूल ऑफ लॉ दे परा और अरशद शरीफ शहीद आजम स्वाति साहब हक दे परा सुप्रीम कोर्ट दे परा रागलू और टोल पाकिस्तान दा हक दे परा वास्ते के दा मुकाद है इमरान खान क़यादत के, और इंशाअल्लाह मुझे वो हक इंसाफ मुस्तकबिल के जर में लुकीगी तो इमरान खान क़यादत के बकाया खुदा इम्पोर्टेड सरकार की कुम दे तो लाड़ दी वो तखरीदलू इंग्लैंड तलाड़ू इंग्लैंड ला ब्या वो तखरीदलू अमेरिकी तलाड़ू और खुदाए की समंदर पार लाड़ सी के ब्या वापसी न हो सीधा मुल्क का ना, और डेर जुल्म सितम करे दे इंशाअल्लाह दा हक इंसाफ वाला इंशाअल्लाह मुझे आवाज रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप फैसलाबाद। रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है? क्या को स्टेट नहीं हो सकती रूल ऑफ लॉ के बगैर, जो जंगल का कानून है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो बका है रूल ऑफ लॉ में है। रूल ऑफ लॉ है तो पाकिस्तान है, अदरवाइज तो जो जंगल का कानून। वकील साहब, आप मुझे ये बताएं, जब इतने बड़े लीडर को गोलियां बरसाई गई, इतने लोगों के दरमियान खड़े हुए, तो मेरी क्या हैसियत है, मेरा क्या होगा? तो इसी की तो जंग है, मुगला ये तो जंग लड़ रहे हैं। रूल ऑफ लॉ होगा तो उसके लिए रूल ऑफ लॉ के तहत सबको इंसाफ मिलेगा। हमारी कोशिश आम शहरी के लिए है, वो खान इमरान खान हो, कोई गरीब हो, कोई मजदूर हो, सब के लिए कानून बराबर हो और सब लॉ के नीचे हो। ये हमारी जंग है। कैसी जंग है? मुझे तो खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असेंबली के सामने टीचर्स को मारा, हाथ पाँव तोड़े, फिर उसके बाद जो है जनाब विलेज सेक्रेटरीज को मारा, उसके हाथ पाँव तोड़े, और परसों जो है EPI टेक्नीशियंस जिन्होंने कोरोना में हमारी जो है वैक्सीनेशन,
कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में रूल ऑफ लॉ नहीं है तो फिर क्या होगा इसका? मैं समझता हूँ कि ये जो इर्तिका का प्रोसेस है, हम निकले हैं तो इंशाअल्लाह ताला रूल ऑफ लॉ की जो है ना वो अमल दरामद उस पर हो जाएगा, और स्टार्ट है इंशाअल्लाह। वक्त बता देगा कि लॉ ने अपना रास्ता खुद बना लिया है।